श्री गुरु ग्रंथ साहब सेवा सोसाइटी चंडीगढ़ ਵੱਲੋਂ 13 ਹੀ 13 ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 30 ਬੈਡਡ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 13 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ सांसद श्री नरेश बांसल ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस हस्पताल की खास गल यह है कि जो लोग पैसे की कमी करके अपना ऑपरेशन नहीं करवा सकते वो इस हस्पताल में आके घट दाम ते ऑपरेशन करवा सकते हैं। इस हस्पताल में सारिया मॉडर्न सुविधावां उपलब्ध ने। ये पहले 113 ऑपरेशनस गोडियां नूं छड्ड के मुफ्त किए जाएंगे। उस तो बाद ऑपरेशनां की कीमत 13,000 रुपये रखी गई है। 14 जनवरी तो ऑपरेशनस की बुकिंग शुरू हो चुकी है। फोन करके ऑपरेशनस की बुकिंग करवाई जा सकती है। इस हस्पताल दे विच लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जिन्हां दे विच वेंटीलेटर, 5 बैड्स वाला एक ICU भी शामिल है। इस हस्पताल दे विच 2 ऑपरेशन थिएटर है और बहुत ही हाईली क्वालीफाइड ते एक्सपीरियंस सर्जनस की टीम इस ते काम करेगी। इस हस्पताल दे विच जो आए सो राजी जाए दे असूल ते काम होवेगा। साडी टीम ने इस सोसाइटी के डायरैक्टर सरदार HS सब्रवाल नाल गलबात की। धन गुरु नानक साहब ने साडे ते बड़ी बख्शिश तरस कीता जो मानता की सेवा च वो लोग जिहड़े पैसे करके अपना ट्रीटमेंट अपना इलाज अपने ऑपरेशन नहीं करवा सकते सी, चाहे वो गॉल ब्लैडर, किडनी स्टोन, यूटरस रिमूवर, प्रोस्टेट, हरनिया, होर तरह के ऑपरेशन जिहड़े नहीं करा सकते सी, ये सेंटर उन्हां दीयां सेवावां वास्ते असीं आरंभ कीता, जिहदे ये ऑपरेशन जिहड़े ने ये पैकेज 13,000 रुपया इहदा पैकेज रखे 13,000 च ऑपरेशन करांगे तो 13,000 भी उन्हां कोल लांगे जिहड़े दे सकते, जिहड़े नहीं दे सकणगे फ्री उन्हां दे ऑपरेशन होणगे। दोनों गोडियां दे जिहड़ियां सर्जरीआं ने मार्केट 4 तो 5 लाख होंदियां वो 1,31,000 रुपये च वो असी ऑपरेशन उन्हां दे कीते जाणगे। ते अज असी इस मौके ते 113 ऑपरेशन पहले गोडे नूं छड्ड के वो असी पहले फ्री ऑफ कास्ट करांगे, उस तो बाद 13,000 रुपया जिहड़ा वो शुरू ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲੇਟੈਸਟ ICU ਬਣੇ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ICU ਹੋਰ 5 ਬੈੱਡਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਮਾਡੂਲਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। कोई कैटागरी नहीं, गुरु नानक दे घर लंगर च कोई कैटागरी जो भी आए राजी जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहब सेवा सोसाइटी चंडीगढ़ ਵੱਲੋਂ 13 ਹੀ 13 ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 45 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ इस निमाणे के जत्थे नूं जिथे साडे वास्ते अरदास भी करते हैं ते सानू सेवा वास्ते भी पूरा सहयोग हर तरह का ये सारियां जिन्नियां संगतां इत्थे बैठियां ने रब ते सारियां नूं दो हाथ जोड़ के सारे इस जत्थे दे परिवार वालों तुहाडा सारियां दा स्वागत।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਬੱਤੀ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਭ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਭਿਜਵਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 13 ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਗਾਇਨੀ ਦੀਆਂ, ਯੂਰੋਲਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਇਹ 15 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਾਤਰ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 1,31,000 ਰੁਪਏ ਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੌਪ ਐਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਐਂਡ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਜਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਡਾਕਟਰਸ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਮ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁਣੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ 113 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੋਡੇ ਛੋੜ ਕੇ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਪੂਅਰ ਨੀਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 13,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਗੋਡੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਨਰੇਸ਼ ਬੰਸਲ ਜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੰਸਲ ਜੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, 2-4 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੀਪ ਜਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੋ।
ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ मैं बड़ी भी जो कहूँगा कि उन्होंने सम्मान के बेहतरीन प्रोग्राम मेरी कल्पना से कहीं दूर, और ये मुझे सौभाग्य मिला श्री नरेश बंसल जी के, जो हमारे और आप सबके हरदिल अजीज राज्यसभा के नवनिर्वाचित, जिन्होंने जिंदगी में कोई चुनाव लड़ा नहीं, राज्यसभा के सदस्य भी बिना निर्विरोध चुन लिए गए, लेकिन एक कार्यकर्ता की भूमिका स्कूल से लेकर के और आज तक उनकी बनी हुई है। देश के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। एक ऐसा व्यक्तित्व आज के इस तेरा ही तेरा, जो सब कुछ तेरा है। हम कभी कभी बड़ा अहंकार करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा। भगवान ने हमें दिया है और हम उसको किस रूप में लौटा सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। भगवान ने धरती पर हमें सबको भेजा है। जैसे अभी सब्रवाल जी की बात हो रही थी, मैं बड़ा गदगद था कि आज की इस स्वार्थपूर्ण जिंदगी के अंदर ऐसे शख्सियत भी हैं जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ करते हैं, और आप उन सब का इतना सम्मान कर रहे हैं। नए घर में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। ये तो आप हैं, संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। तो एक ऐसा काम जिसका अभिनंदन जितना किया जाए उतना कम है। कुछ लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे भी, हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, क्या पता वही जिंदगी के मायने बन जाएंगे। हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, क्या पता वही जिंदगी के मायने बन जाएंगे। जिंदगी में कुछ याद रहे ना रहे, पर ये लोग बहुत याद आएंगे, लोग बहुत याद आएंगे। हम कुछ लेकर के नहीं आए और कुछ लेकर के जा नहीं सकते। सबको इस धरती से जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है, ये सबको पता है। लेकिन कोई ना कोई मिशन दे करके सबको यहाँ ईश्वर ने भेजा है। जैसे रोशनलाल जी ने उल्लेख किया और सुरेश शर्मा जी की बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ उपस्थित थी, और ऐसे ही बहुत लोग हैं, एक एक का बखान करेंगे। प्रोग्राम को इतना ऊंचाई प्रदान कर दी है और अपनी अपनी भूमिका सब निभा रहे हैं। ये लोग तो कर रहे हैं, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात। और अंत में जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना, जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें, लोग याद करते रहें। ऐसी सब शख्सियत आज के कार्यक्रम पर उपस्थित हैं। मैं नरेश बंसल जी से ही करता हूँ। आज हमारे सुरेंद्र सिंगला जी आए हैं पंचकूला से, दिल्ली से कपिल गर्ग सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आए हैं। इस कार्यक्रम का पता लगते बहुत लोग आए हैं।
ये दिल्ली से आए हमारे राहुल जी, सबका हार्दिक अभिनंदन और सारी संगत को सादर प्रणाम। अच्छे ढंग से जो हमें आशीर्वाद दिया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। मैं अब आपका परिचय हमारे बीच में अभी उपस्थित हुए हैं श्री प्रवीण गोयल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ। He is so kind and humble कि जब हमारा 3 साल पहले गुरु का लंगर आई हॉस्पिटल शुरू हुआ तो सर अनोखे पता लगे कि लंगर शुरू होया अखां दे प्रश्न। इन्होंने अपनी टीम ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, श्री यूडी सिंह जी इन्हों की ड्यूटी लाओ भी जाके देखो एक वीडियो चल रही है भी वाकई उत्थे सेवा एक्चुअली हो रही है कि वीडियो खाली बनो। तो उन्होंने इन्होंने फीडबैक दी थी। उस तो बाद 3 साल हुए ये गुरु नानक साहब की कृपा नाल साडी संस्था नाल जुड़े ते परमात्मा ने इन्हों ते इन्नी किरपा की ਲੱਖਾਂ रुपए का इक्विपमेंट इन्होंने आई हस्पताल दे विच दिता। आज के इस मैं कहूँगा कि पावन परम पवित्र कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री एच.एस. सब्रवाल जी, श्री गुरदीप सिंह जी, श्री संजय सिंगला जी, श्री आर्य जी, श्री गिल साहब और मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय जगदीश मित्तल जी। इतना पुनीत कार्य है, लगता है कि पूरा जीवन उसमें लग जाए। वो सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ सेवा का काम कर रहे हैं। किसी दीन दुखी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, उसका दर्द कम हो जाए, वो पैसे के अभाव में पीड़ा न भुगतता रहे, ये काम मैं समझता हूं मानवता का सर्वोत्तम काम है। आप सब जिस प्रकार का काम कर रहे हैं मैं उसे नमन करता हूं। आप सब ने मुझे यहां पर बुलाया, मेरा जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आप सबको हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार के कामों की एक श्रृंखला पूरे देश भर में चल रही है। मैं अनेक स्थानों पर जाता हूं। कल भी मैं एक स्थान पर था, हरिद्वार में, भादराबाद में। हमारी आज की मुख्य अतिथि जो गवर्नर महोदया यहाँ आने वाली थी, नहीं हेलीकॉप्टर उनका उतर पाया, वो और मैं साथ साथ थे उस कार्यक्रम। वो भी एक अद्भुत कार्यक्रम वात्सल्य वाटिका के नाम से। आपने देखा होगा कि अनेक स्थानों पर अनाथालय नाम दिया जाता है, जिनके माँ बाप का पता नहीं होता ऐसे बच्चों को।